हाय एवरीवन, आई होप सब लोग मजे में हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक हमने टॉपिक लास्ट वाले सेशन के अंदर देखा था, विच इज एनालिटिकल रीजनिंग। वी आर कवरिंग एलआर फाउंडेशन। आई होप सब लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। एलआर फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पजल हम लोगों ने सॉल्व किया था। आई होप आप सब लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा। वी हैड ऑल्सो सीन वन होम असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जिसके अंदर एक क्वेश्चन था जो आप सब लोगों ने जरूर ट्राई करा होगा। उसको देखते हैं। इस वाले वीडियो के अंदर हम कुछ और इंटरेस्टिंग एनालिटिकल रीजनिंग पजल सॉल्व करेंगे एंड फिर वी विल सी other important aspects for LR Foundation. So welcome to the LR Foundation video. तो ये वाला क्वेश्चन था जो आई एम श्योर अब तक सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप एक बार पिछला वाला LR फाउंडेशन वीडियो एक बार जरूर देखो और उसको आप एक बार ट्राई करो। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आफ्टर फेसिंग yet another World Cup debacle, the board of cricket is searching for a new coach, shortlisted 5 people. Okay, each of them from a different country. At present, each of them is coaching a different country. Okay, so it's an analytical reasoning problem that we have identified. So there are 3 fields here, right? We had done the Einstein puzzle in the last video. There were 6 fields. Here we have 3 fields, so should be a fairly simple problem. But we can't, we can't say that for sure. But generally, it should be an easier problem. Okay, now let's draw the table. So first we have, name of the people, the country that they belong to, and the team that they are coaching at this point in time, right? So Anshuman, Buchanan, John, Watmore, and Chapel. Okay, so that is what is given to us. ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये वाला तो हमने टेबल तो अपना ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है। For any person, each of his 3 particulars, his name of the country from which he is, and the name of the country that he is coaching, starts with a different letter. Very important piece of information. मतलब क्या है? Anshuman cannot be from Australia, or Anshuman can't coach Australia, right? That is what it means. Buchanan can't be from Bangladesh or can't coach Bangladesh, or Chapel can't be from Canada. Why? Because these initials should not be the same. I hope the instruction is absolutely clear. So the first instruction is slightly confusing, maybe slightly confusing, but I hope now it is absolutely clear. So the first instruction is done. Watmore is coaching Australia. So Watmore is coaching Australia, that we know. And John is from neither Australia nor Pakistan. So John is neither Australia nor Pakistan. So what I'll do, Australia bar Pakistan bar. Okay, so that is the convention that I'm using. If there is somebody who's not from A, I write it as A bar. You can represent it in various ways, but only request keep your conventions the same. Okay, don't confuse it. Okay, so I'm using bar here. So not from Australia, not from Pakistan. So this one is done. Buchanan is not coaching China. So Buchanan is not coaching China. And the person who's coaching Bermuda is from Canada. So there is a Canada-Bermuda combination that we have to place. Now I can't place Canada-Bermuda here because the initials here is C. I can't place it here because already Australia. Canada and Bermuda, I can't place it here also. Right? There is one more information. Anshuman is not from Canada. So I can't place Canada, Bermuda here also. So only possibility is here. So I put a Canada here and Bermuda. So that part is sorted. Right? So this one is done. Anshuman is neither from Canada nor from Pakistan. Also, the person from Pakistan is coaching Bangladesh. So there is a Pakistan and Bangladesh combination also. Again, Pakistan Bangladesh combination, I can't, where all I can't put it. Let's see. Pakistan and Bangladesh, I can't put it here because initial here is B. I can't put it here because Anshuman is not from Pakistan, right? I can't put it here, can't put it here. So Pakistan and Bangladesh will be here. Now, Buchanan is not coaching China. So China, only possibility is here.
and the remaining is Wales. So I put Wales here. So this field is absolutely complete, right? Now you see here I have put Australia, so I can't put Australia here. I definitely can't put Australia here because of the first condition. The initials should be different. So only position that I can put Australia is here. Let us see if I have any other information to fill the rest of the cells or not. For now, I think we have exhausted all the information that we had, which means that there are two countries left, India and Japan. So it will be either India/Japan or Japan/India. Always remember that it may happen that sometimes you are not able to solve the puzzle completely. Sometimes there are a few pieces of information given in the question also. So don't blame yourself if you can't solve it. Sometimes there are not enough information in the question, so don't worry about it. If you are able to solve it, you are able to solve it. Rest you will be able to solve through the question. ठीक है, तो अपने आप को गालियां नहीं देनी है आपको. अगर आपने जितना भी आप सॉल्व कर पा रहे हो अच्छे से उतना सॉल्व करो और सारे पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करो. दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा. एक और इंटरेस्टिंग एनालिटिकल रीजनिंग पजल देखते हैं. चलिए, लेट अस सी. माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक बार वीडियो यहाँ पे पॉज करो, खुद से ट्राई करो 2-3 मिनट एंड देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर. चलिए आइए देखते हैं. आई एम होपिंग कि सबने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा. ओके, नाउ 6 families: Sharma, Dubey, Joshi, Verma, Agarwal, and Mishra. Okay, so one field is name. Going to 6 different hill station, 6 different months, and then there is mode of transport. So there are 4 fields here. Okay, name, then hill station, month, and mode of transport. Right. So the last one had 3 fields. This one has 4 fields. Okay. Okay. Still should be easier than the Einstein puzzle that we have done. राइट, इन द फर्स्ट पार्ट. तो उससे आसान ही होना चाहिए. चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. पहले तो सारे नाम हम लोग लिख लेते हैं. शर्मा, दुबे, जोशी, वर्मा, अग्रवाल एंड मिश्रा. नोट कर लिया. चलिए देखते हैं कौन कहाँ जाएगा हिल स्टेशन में मजे करने के लिए. ठीक है, हम लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं और इधर ये लोग काफी मजे कर रहे हैं. ठीक है, अपना टाइम भी आएगा. चलिए देखते हैं. सो अभी मिस्टर अग्रवाल गोज टू महाबलेश्वर. तो अग्रवाल के आगे महाबलेश्वर लिख दो. सबसे पहले फ्री वाले इंफॉर्मेशन पिक करेंगे. हमने सीखा था पिछले वाले पार्ट में, फ्री वाले इंफॉर्मेशन उठाओ. गोज टू महाबलेश्वर नॉट बाय एयर और बस. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बस से कितने लोग जाने वाले हैं? बस से 2 लोग जाएंगे. ठीक है, 2 लोग रेल से जाएंगे, एक कार से और एक एयर से. राइट, ये है अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन. अब महाबलेश्वर जा रहे हैं अग्रवाल जी, बट एयर या बस से नहीं जा रहे हैं. तो कैसे जाएंगे? या तो रेल से जाएंगे या कार से जाएंगे. राइट. और क्या है अपने पास फ्री का इंफॉर्मेशन? मिस्टर जोशी गोज टू नैनीताल. ये फ्री वाले इंफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग है. ठीक है, गोज टू नैनीताल इन मार्च बाय बस. क्या बात है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया भाई, बहुत ही सही. तो ये हमने यूज कर लिया इंफॉर्मेशन, ये वाला हमने यूज कर लिया इंफॉर्मेशन. ठीक है. शर्मा प्रेफर्स बस जर्नी. तो शर्मा जी भी बस से जाते हैं, तो बस वाले दोनों पता चल गए. ठीक है. शर्मा जी डज नॉट ट्रैवल इन फेब और मे. तो फेब में और मे में ट्रैवल नहीं करते हैं, तो ये मैं बार यहाँ पे लगा रहा हूँ. ठीक है, डज नॉट ट्रैवल इन फेब और मे. ठीक है, यहां तक अपने को मालूम चल गया. आगे चलते हैं. लेट अस सी. नाइदर मिश्रा नॉर दुबे फैमिलीज गो टू शिमला और मसूरी. ठीक है, शिमला और मसूरी. फैमिली इज गोइंग टू कुल्लू एंड शिमला गो बाई एयर एंड कार. तो कुल्लू जाने वाले एयर से जा रहे हैं, शिमला जाने वाले कार से जा रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है ये शिमला नहीं जा रहे होंगे. लिखा हुआ है कि दुबे जी शिमला नहीं जा रहे हैं, है ना. ये देखो, दुबे फैमिली शिमला नहीं जा रही है, मिश्रा जी भी शिमला नहीं जा रहे हैं, तो ये भी नहीं जा रहे. और ये तो महाबलेश्वर जा रहे हैं, ये तो नैनीताल जा रहे हैं, तो शिमला कौन जाएगा? ये जो क्वेश्चन है हु इज गोइंग टू विजिट शिमला, ये तो अभी ही खत्म हो चुका है. ठीक है, तो ये तो आपका बिना पूरा पजल सॉल्व किए ही क्लियर है. ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं. तो हमने शिमला यहाँ पे हमने मैप कर दिया. तो फैमिली इज गोइंग टू कुल्लू एंड शिमला गो बाई एयर एंड कार रेस्पेक्टिवली. तो ये कार से जाएंगे, ये कार से जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ, ये आपका रेल से जाएंगे. ठीक है, तो ये अपना हमने कर लिया.
अब देखो और अपने पास क्या गिवन है, ये भी हमारा इंफॉर्मेशन हमने यूटिलाइज कर लिया, ये हमने कर लिया है ना, ये हमने यूटिलाइज कर लिया। नाइदर मिश्रा नॉर दुबे फैमिलीज गो टू शिमला और मसूरी, तो ये भी नहीं जा रहे हैं शिमला मसूरी। अब देखो, अब काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है सिनेरियो। दुबे जी नहीं जा रहे हैं शिमला मसूरी, ठीक है, और मिश्रा जी भी नहीं जाएंगे, तो मसूरी ये भी नहीं जाएंगे, मसूरी ये भी नहीं जाएंगे, तो मसूरी कौन जाएगा? शर्मा जी को ही जाना पड़ेगा मसूरी, है ना, तो मसूरी हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, कोडाई कैनल वॉज विजिटेड इन अप्रैल एंड मिश्रा डज नॉट ट्रैवल इन अप्रैल, इसका मतलब मिश्रा जी अपना अप्रैल में ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं, करेक्ट है। तो मिश्रा जी अप्रैल में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और कोडाई कैनल अप्रैल में ही ट्रैवल हो सकता है, तो मिश्रा जी इज नॉट गोइंग टू कोडाई कैनल, तो एक ही बचा है यहाँ पे। तो कोडाई कैनल कौन जाएगा? दुबे जी जाएंगे, तो मिश्रा जी कहाँ जाएंगे? एक ही प्लेस बचा है, कुल्लू, तो कुल्लू भेजो इनको। कुल्लू चले गए, तो कुल्लू जाने वाले एयर से जाएंगे, तो ये एयर हो जाएगा, तो एक ही बचा अपना यहाँ पे रेल आ जाएगा, क्योंकि रेल दो है, बस दो है, कार एक और एयर एक। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अपने को पता चल गया, कोडाई कैनल भी अप्रैल होगा, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व अ पजल लाइक दिस। आई होप आपको ये वाला पजल सॉल्व करने में भी मजा आया होगा। पिछले वाले वीडियो में और इस वाले वीडियो को मिला के आई होप एनालिटिकल रीजनिंग पजल समझ में आ गया होगा। तो इंटरनेट पे जाओ और अंधाधुन एनालिटिकल रीजनिंग पजल लिखो और सॉल्व करो, ठीक है, जितने मर्जी सॉल्व करो। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल बिकम बेटर एट इट। सॉल्व करते जाइए, खुश रहिए। एक और होम असाइनमेंट, एक और आसान क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आई एम श्योर ये वाला तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, और इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है। ट्राई दिस वंस योर सेल्फ। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल कैट क्वेश्चन नहीं है, बट यू नो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों एक्चुअल कैट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने सॉल्व करे पिछले वाले वीडियो और इस वाले वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग हमने सॉल्व करे क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग पजल के। आने वाले वीडियोस में कुछ और इंटरेस्टिंग हम पजल्स एलआर के फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, डू शेयर विद ऑल द अदर एस्पिरेंट्स हु आर देयर, जिनको इससे बेनिफिट मिल सकता है, जिनको इससे सीखने मिल सकता है, so that my energy can also be channelized in the right direction. Thank you so much for joining in. There'll be a link in the description. आप उसके अंदर हमें बता सकते हो कि आप कौन सा वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हो, and we'll create videos to help you out. Thank you so much for joining in. God bless you all. Take care and bye bye.